आइटम नंबर 15 श्री अजय मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों तथा दूसरों की माप को प्राधिकृत करने तथा अभिलेखों के परीक्षण तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the bill as it is in derogation of both Article 20, Sub-Article 3 and Article 21 of the Constitution of India and therefore beyond the legislative competence of this House. Mr. Speaker, sir, Article 20, Sub-Article 3 explicitly states, no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. The words biological samples and their analysis in clause 2(1)(b) of the bill could extend to narco-analysis and brain mapping, and when it is made coercive in terms of clause 5, it is clearly violative of Article 20, Sub-Article 3 of the Constitution of India. Further, Mr. Speaker, sir, the implied use of force in clause 6(1) to take measurements violates the rights of prisoners laid down in a catena of Supreme Court judgments, beginning with A.K. Gopalan 1950, Khadak Singh 1964, Charles Sobraj 1978, Sheila Bharse 1983, Pramod Kumar Saxena 2008. Mr. Speaker, sir, just 2 minutes. Section 4(2) of the bill states that record of measurement shall be retained for 75 years from the date of collection. This is in violation of the right to be forgotten enshrined in the right to life under Article 21 of the Constitution in terms of the Puttaswamy judgment. Mr. Speaker, sir, I will just conclude by saying this August Assembly must very seriously deliberate that whether it is in the legislative competence of the Treasury to sponsor legislation which squarely hits the fundamental rights guaranteed to the citizens of India under Part 3 of the Constitution, and whether it is within the legislative competence of this August House to consider such illegal legislation. That is my objection to the bill. N.K. Premchandan ji. Sir, I fully support. Sir, I fully support the observations of Honourable Member Shri Manish Tiwari ji. And I rise to oppose strongly because this is a draconian legislation on the part of the government. Why I will say, so the rights of fundamental rights in Part 3 of the Constitution is being totally violated. Sir, Clause 3, Subclause C of the bill says that if a person who is arrested in connection with an offence punishable under any law for the time being in force, his biological specimens can be taken for investigation. Sir, if I am arrested, you kindly go through the bill. If I am arrested in picketing the collectorate for the civil right protection or for any genuine demand, if I am arrested and FIR has been lodged against me, suppose if DNA test can be taken from me. What is this? This is the basic human right of a particular individual. It is being taken away. What is the reason? What is the logic, intention of the bill? Kindly explain this bill. That is why I am saying that this is directly violation of the fundamental right. Not only the convict, sir. Honorable Speaker, sir, the A says regarding the convict. Convict for which offence? Suppose a penal offence, suppose 100 rupees penalty. Sir, very important, sir. Suppose 100 rupees penal fine is imposed. He is a convict. From him, DNA biological specimen can be taken. All these biological specimen can be taken means then what is the fundamental rights? So it is violation of Part 3 of the Constitution number 1, and it is against, sir, it is against the UN Human Rights Declaration. That is also very specific human rights violation. So since it is human rights violation and fundamental rights violation, there is no legislative competence of this House to pass such a legislation. Definitely this will be struck down by the Supreme Court or the High Court. So I urge upon the Honourable Minister, please, Honourable Speaker, please don't allow the government to introduce a bill since it is violative of the Constitution, ultra vires the Constitution. माननीय सदस्यगण, जब कोई एक माननीय सदस्य ने एक विषय पे विरोध कर दिया और अपना पूरा वक्तव्य दे दिया है, ऐसे तो इस सारे विषयों में नियम 72 के अंदर विधायन क्षमता से परे हो तब इस पर डिबेट पर चर्चा की जाती है। लेकिन जब
पूरी डिटेल चर्चा होगी। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपने विषय वस्तु पर उस समय रखना। अभी आप ये बिल लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, विधायन क्षमता संसद की है या नहीं, सरकार की नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सौगत राय जी, कानून से बोलेंगे आप। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत दिनों बहुत दिन बाद बोलने का मौका मिला। आप बाहर थे। And under Rule 72(1), I oppose the introduction of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. I do not want to repeat the arguments already forwarded by learned Manish Tiwari and N.K. Premchandan. But sir, you will know from common sense that it is the basic principle of law that nobody is found guilty unless proved in a court of law. The second right people have, that if somebody is arrested, he has to be produced in court within 24 hours, and he has a right to be represented by a lawyer. Now, so far, from 1920, the original bill was there. It has been going on. Suddenly it comes to the brain of the Home Minister that we must make it stricter. We must take fingerprints, the iris photographs. Why? And biological samples. Why? This and narco-analysis, brain mapping. सर, अचानक क्या जरूरत पड़ गया कि अचानक क्राइम क्या बढ़ गया है? ये सरासर हमारा, sir, you know, from 20 to 24, all the articles in the Constitution deal with the human rights of people. This law, which allows for narco-analysis, which allows for taking biological specimen, taking the photograph of the iris, this violates basic human rights and is against the principle of the Constitution. Sir, आपने अभी बोला है कि बाद में बिल के चर्चा के समय उठाइए, लेकिन एक गलत बिल आपको सामने लाया जाए इंट्रोडक्शन के नाम में, ये सरासर हाउस का खिलाफ होगा, हाउस का नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, सर, इसको इंट्रोडक्शन मत होने दीजिए। होम मिनिस्टर आए, एक्सप्लेन करिए। टेनी जी क्या समझाएंगे सर? ये होम मिनिस्टर को समझाने का जरूरत है। धन्यवाद सर। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to oppose vehemently under Rule 72(1), introduction of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Sir, the reason being, the law can ask those people who have been convicted by the court to give their biometric measurements. However, the present bill, I would reiterate, however, the present bill seeks to empower the police and court to take measurements of persons who are under trial or who are suspected to be involved in a case, or there is a presumption against some person that he may in the future do any illegal act. These provisions are violative of Article 21 of the Constitution, that is right to freedom and personal liberty. So the provision of the bill also violates the judgment given by the Supreme Court in Puttuswamy case. That means the provisions are against the right to privacy. Right to privacy as propounded in the Puttuswamy case. That is also being violated by this kind of draconian law. Sir, given that the cases of custodial violence are high in India, there is a high possibility of forceful measurement resulting in lifelong stigmatization and grave violation of human rights. Sir, in absence of any form of data protection statute, the bill might do more harm than good. Additionally, in such a highly unregulated area, there is little empirical data supporting the accuracy of criminal profiling, in addition to the absence of criteria for what constitutes an expert in the discipline. So all the छोटे-छोटे point है sir. Lack of technology and margin of grave error. Currently, sir, हो गया. Currently, India does not have any advanced technological equipment
to profile offender. Even in far more technologically advanced countries, there has always been a margin of error in such profiling. There have been several cases where these errors have resulted in incarceration of innocent citizens. सर किस लिए ये वायलेट कर रहे हैं ये मैं बयान देता हूं. सर क्लॉज 7 सर हो गया. सर क्लॉज 7 of the bill exempt any person or authority from any resulting liability. It states that no action or other proceeding shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith under the act or any rule issued thereunder. So it is clearly vindicating our argument that this bill is not in accordance with our constitutional provision, and it is certainly a bill which is a direct affront to our constitutional provision. Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के विरोध में यहाँ पे उठा हुआ हूँ, उसके इंट्रोडक्शन के विरोध में. अध्यक्ष जी, संविधान में आर्टिकल 21 के तहत जो मूल अधिकार हमारे देश के नागरिकों को गारंटी दिए गए हैं उनका हनन हो रहा है. वो इस कारण से हनन हो रहा है क्योंकि जो हमारे आज जो भारत सरकार है वो ये चाहती है कि लोगों को एक भय में रखा जाए. उनके ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे सदस्य किसी भी चीज को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने अगर कोई विरोध रखता है तो उसको ऊपर अगर कोई केस होता है तो उसको लेकर के भी उनके मेजरमेंट्स यानी कि उनके फिंगरप्रिंट, आइरिस, डीएनए सैंपल्स वगैरह तक रखे जा सकते हैं. ये पूरी तरह से एक मानसिक रूप से नागरिकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो कभी भी किसी भी जो है अपने अधिकारों के लिए सामने लड़ने में आने में हिचके. इसलिए ये आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है. सर मैं माननीय सदस्यगण 72 रूल को पढ़ाऊंगी आप लोगों को. ठीक है माननीय अध्यक्ष जी. माननीय अध्यक्ष जी, हाँ, नोटिस देने से नहीं मेरा अधिकार है मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं. नोटिस तो पूरा सदन दे सकता है. अध्यक्ष जी, बंदी शिनाख्त अधिनियम जो मौजूदा है वो 1920 में बना था. 102 वर्ष हो गए हैं और उस बंदी अधिनियम में केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का ही को अधिनियमित किया गया था. ऐसा है माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन चौधरी जी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है. मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, 1 मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूं, 1 मिनट के लिए भी जेल में गया हूं, तो अभी राजनीति से को संन्यास ले लूंगा. 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए. इसलिए ध्यान से सुनिए, जिधर बिल के बात कर रहे हैं बिल की बात करिए. माननीय अध्यक्ष जी, जो पुराना अधिनियम मौजूदा है जो इस समय प्रभावी है वो 102 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता से पहले 1920 में बनाया गया था और उसमें केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को लेने की ही सहमति उस अधिनियम के द्वारा दी गई थी. अभी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और पूरी दुनिया में जो अपराधियों को और अपराध करने का ट्रेंड बढ़ा है उसके अनुसार इसको विस्तारित करने की आवश्यकता थी और इसीलिए दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 हम लेकर के आए हैं, जिसमें न केवल जो प्रक्रिया है मेजरमेंट की उसको विस्तार देने का काम किया गया है, उसके साथ साथ उसकी श्रेणियों में भी वृद्धि हो उसका भी हमने काम किया है. लेकिन ये छोटा अधिनियम है जिससे न केवल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फायदा होगा, प्रोसिक्यूशन बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ कोर्ट में कन्विक्शन की प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्ट के माध्यम से हमको प्राप्त होंगी. इसमें प्रत्येक उस चीज का ध्यान रखा गया है जिसमें हमारे समस्त अधिकार भी सुरक्षित रहे, संवैधानिक भी रहे. हमने लॉ मिनिस्ट्री से और लेजिस्लेटिव दोनों के द्वारा पूरी तरह से विचार करने के बाद उसके साथ साथ जो हमारी एनसीआरबी रिकॉर्ड एकत्रित करती है उसने राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ लंबी चर्चा करने के बाद हम ये अधिनियम लेकर के आए हैं, जिसमें इन लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के अनुसार निजता के मौलिक अधिकार को निरपेक्ष नहीं माना जा सकता और इसे अनिवार्य जनहित के सामने हम लोगों को स्वीकार करना ही होगा. मौजूदा प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से मनमाना नहीं है. बढ़ते हुए अपराध पर नकेल कसने एवं दोष सिद्धि को सुदृढ़ करने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के हाथों को मजबूत करने के लिए यह अधिनियम हम लेकर के आए हैं. इससे पहले भी माननीय अध्यक्ष जी 1980 में विधि आयोग ने
इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था, परंतु उसको भी 42 साल हो गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने ये काम करने का प्रयास किया है, जिसमें अभी जो हमारे प्रेमचंद्रन जी ने सवाल उठाया 53 और 53A का जो डीएनए से संबंधित, वो पहले से सीआरपीसी में जारी है और आपको पता होगा, आप इतने अच्छे अधिवक्ता हैं तो ये सारी जानकारियां आपको है। जहां बायोलॉजिकल सैंपल की बात है, हमने उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है, अगर आपने अधिनियम पढ़ा होगा तो हमने उसमें यह किया है, जो भी ऐसे व्यक्ति जैसे अपराधों में जिनका सैंपल मेजरमेंट का लिया गया है, जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा है, महिलाओं और बच्चों के अपराधों से संबंधित बातों को छोड़ करके उनको सहमति है कि अगर वो बायोलॉजिकल सैंपल देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो नहीं दें। ऐसी व्यवस्था भी हमने उसके साथ में की है। डाटा प्रोटेक्शन के लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है, इसमें दोनों केंद्रीय एजेंसी, राज्य एजेंसी, दोनों को अपने अपने नियम भी बनाने का अधिकार है और डाटा प्रोटेक्शन करने का भी अधिकार है। हमने एनसीआरबी को केंद्रीय एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है, जो पहले से ही फिंगरप्रिंट के काम को, जो डिजिटल और हमारे इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, उनको सुरक्षित करने का काम कर रही है। हमने पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये तय किया है, ऐसे जो भी व्यक्ति जो कन्विक्ट नहीं होते हैं, जो किसी कारण न्यायालय से छोड़ दिए जाते हैं या जिन पर मुकदमा नहीं चलता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का डाटा किसी भी उस स्थिति में जब तक न्यायालय स्पष्ट आदेश न दे, वो नहीं रखा जाएगा, वो नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, वो नहीं रखा जाएगा। आप उसको अधिनियम को तो पढ़िए। उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा, ये एक छोटा अधिनियम है जो इसलिए लाया गया है कि दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, अपराध की श्रेणी और अपराधियों की श्रेणी जिस तरह से बृहत्तर हो रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन के पारंपरिक तरीकों के अलावा वैज्ञानिक तरीके और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी आवश्यक हो गया है। पूरी दुनिया के सभी विकसित देशों में ऐसा हो रहा है और हमारा उद्देश्य केवल न्याय के लिए ऐसा अधिनियम बनाना है जिसमें इन्वेस्टिगेशन, अभी जैसे आपने देखा होगा, हमने ICS 4 के द्वारा भी, जिसमें हमने 5 स्तंभों को जोड़ा है। हमने पुलिस, उसमें फोरेंसिक, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, इन पांचों स्तंभों को जोड़ा है और उनको जोड़ करके ये सारी चीजें हो रही हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डाटा हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और वो सारे प्रोटेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन है। सारे सर्वोच्च न्यायालय और हमारी संवैधानिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखा गया है। लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा और लेजिस्लेटिव के द्वारा पूरी चर्चा की गई है। प्रत्येक प्रदेश ने और केंद्र शासित राज्य ने इसमें सहमति जताई है और भी स्टेक होल्डर जो इससे संबंधित हैं, ऐसी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी सहमति जताई है। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा बिल है जो हमारे देश में एक आमूल चूल परिवर्तन अपराधों में लाएगा, जिसमें अपराधियों को पकड़ना भी आसान होगा, इन्वेस्टिगेशन आसान होगा और सही अपराधी पकड़े जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ये एक छोटा बिल है, बहुत छोटा बिल है, आप सब लोग इसमें साथ में आइए और इस बिल को पारित करिए। अपनी चर्चाओं को आप जो रखेंगे उसका जवाब पूरी तरह से हम आपको सदन में देंगे। जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान करेंगे, उन शंकाओं का समाधान करेंगे। राष्ट्रीय है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। अभी डिवीजन का नंबर तक तो आने दो, आप सब वरिष्ठ सदस्य हो, अभी पढ़ने तो दो पूरा। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। लॉबी खाली कराए जाए।
Speaker will be coming back within a few minutes. लॉबी क्लियर हो चुकी है, खाली हो चुकी है। महासचिव जी। I have to inform the honorable members that division will take place under Rule 367 AA by distribution of slips.
all members seated in the Lok Sabha chamber and Lok Sabha galleries will be supplied at their seats with ayes, noes printed slips for recording their votes. Ayes slips are printed on one side in green, both in English and Hindi, and noes in red on its reverse. On the slips, members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, division numbers and date. Members who desire to record abstention may ask for the abstention slip. Immediately after recording one's vote, each member should pass on the slip to the division officials who will come to the seat to collect the same for handing over to the officers at the table. Members are requested to fill in only one slip for division. Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the division officials. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। अब मतदान
रितेश जी प्लीज बैठ जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 120 120, विपक्ष में 58 58। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी, स्थापित करें। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पूरा स्थापित करता हूं। लॉबी खोल दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को प्रस्थापित करता हूं। श्री शून्यकाल, श्री अधीर रंजन जी, मौका दूंगा मैं आपको, बैठ जाओ। मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा आपको, अरे मौका दूंगा। अधीर रंजन चौधरी जी।